Hi friends, welcome to Unacademy, India's largest online learning app. We are going to provide you support for IIT, JEE, NEET, UGC, then SSC exams, MPSC, UPSC class 9, 10th, 11th and 12th also. You can ace your final exams with Unacademy Plus subscription. So Unacademy Plus subscription is at flat 10% off discount. So, dear learners, welcome to the class. I am Trupti Deshmukh. I have done my Masters of Computer Engineering. So, I am going to teach you subjects like C, C++, C Sharp, ASP.NET, programming in Python, as well as I am going to teach you the subjects like information technology for class 9, 10th, 11th, 12th, and also computer science for class 9, 10th, 11th, 12th. So, please वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें. So students, let's get started with the today's lecture. Hi friends, welcome to today's session. So before actually to start with our lecture, let me tell you about the exciting offer for all CBSE classes from class 6 to class 12 students. It is a ask out session. Yes, you can ask any 5 doubts related to that subject and you can get the free 7 days trial of the plus subscription. And the offer is valid from 4th July 2021 to 9th July 2021. So download the app now and you can use my referral code that is TD. आप लोग कोई भी 5 डाउट रिलेटेड टू दैट सब्जेक्ट, जो कोई भी आपका सब्जेक्ट है उसके रिलेटेड आप पूछ सकते हैं एंड यू कैन गेट दी फ्री 7 days ट्रायल ऑफ द प्लस सब्सक्रिप्शन. सो देर के बात की है, यू कैन आस्क 5 डाउट्स एंड स्टार्ट विद द यूजिंग प्लस सब्सक्रिप्शन. तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं. So today we are going to see class 10 information technology code 402 under NSQ. So now we are going to see how to link, that is linking spreadsheet data. So in last lecture we have seen how to work with the spreadsheet data. We have seen how to use the consolidation of the data. डेटा को कंसोलिडेट कैसे करना है वो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा है. उसके बाद हम लोगों ने देखा है व्हाट इफ एनालिसिस एंड हाउ टू यूज द सब टोटल्स. सब टोटल्स जो हम हमारे पर्टिकुलर स्प्रेडशीट में हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं. उसके बाद हम लोगों ने कहा व्हाट्सएप एनालिसिस में हाउ टू यूज द सिनेरियोज, देन हाउ टू यूज द गोल सीकर एंड सॉल्व. Now in today's lecture we are going to see linking spreadsheet data. Okay, it is very easy part, that is how to use the linking between the multiple spreadsheet documents. So these are the contents of the today's lecture, that is introduction to how to use the multiple spreadsheet data, the need for multiple worksheet, then setting up multiple worksheets. Then we are going to use the actual names, that is viewing sheet names and selecting the sheets. उसके बाद हम लोग देखने वाले inserting sheets, renaming the sheets, then deleting sheets as well as linking sheets. Lastly, creating links to other sheets, and the last but not least the most important point, that is how to use the hyperlink to the particular sheets. So let's get started with the first point, introduction. फर्स्ट डेटा नीड्स टू बी स्टोर्ड इन दी मल्टीपल शीट्स. ठीक है, जैसे हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था, हम लोगों ने टू डिफरेंट स्टूडेंट डेटा यूज किए थे. फॉर एग्जांपल स्टूडेंट डेटा ऑफ 2019 एंड स्टूडेंट डेटा ऑफ 2020. सो ये सब क्या है, ये मल्टीपल शीट्स एंड वी आर गोइंग टू मर्ज दिस शीट फॉर पर्टिकुलर पर्पज. जैसे कि उसकी काउंटिंग करनी है या फिर वी हैव टू कैलकुलेट द एवरेज ऑफ द डेटा. उसके बाद हम लोग उसका सम भी कैलकुलेट कर सकते हैं. तो ये सारी चीजों के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, मल्टीपल शीट्स जो है वो यूज करते हैं. और जनरली क्या होता है, जनरली शीट्स में डिपेंडेंसी होती है. देखिए जितना आपका डेटा बड़ा होता जाएगा उतनी क्या होती है, शीट्स में की डिपेंडेंसी जो है वो बढ़ जाती है. जैसे कि वन शीट नीड्स द डेटा ऑफ द अदर शीट्स. यहाँ पर क्या बोल सकते हैं हम लोग, इंटरडिपेंडेंसी जो है डेटा में वो ज्यादा हो सकती है. सो एट दैट टाइम वी नीड टू हैंडल द लिंकिंग बिटवीन वन शीट टू अनदर शीट्स. दैट्स व्हाई इट इज नेसेसरी टू यूज द मल्टीपल शीट्स हियर. जैसे कि कोई पर्टिकुलर कंपनी है और वो कंपनी में क्या है, आपका बहुत सारा डेटा है. दैट इज कंपनी इज लॉन्च्ड फ्रॉम 2015. सो उसका 2015 का डेटा, देन उसका 2016, 17, 18, 19, 20, 21. दैट इज देयर आर सो मेनी डेटास using which you can analyze the company's growth, you can analyze the company's profit and loss. लास्ट ईयर कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ था, ये ईयर कंपनी को कितना प्रॉफिट मिला या फिर मिलेगा. देन वी हैव टू कैलकुलेट द लॉसेस आल्सो, then some deposit, any transactions like the financial terms. ये सारे चीज क्या है, जनरली हम लोगों को कंपैरिजन करने के लिए जरूर रहते हैं. दैट्स व्हाई
we need to use the multiple sheets, that is data needs to be stored in multiple sheets for there many reasons like comparing, for analysis, for then calculating profits and loss and so on. So likewise, we are going to use how to actual connect the linking between the particular spreadsheets. So first of all, need for multiple worksheets. Why there is you need to use the multiple spreadsheets here? Okay, देखिए जैसे कि मैंने कहा था, a single worksheet cannot fulfill the actual purpose of the user, of the owner. एक सिंगल वर्कशीट पर आप सारा का सारा डेटा तो एडजस्ट नहीं कर सकते हो। जैसे कि आप लोग आपका खुद का ही प्रोग्रेस देख लीजिए, सपोज यू आर गोइंग फ्रॉम क्लास 9 टू क्लास 10 देन क्लास 8 टू क्लास 9, तो आपका क्या है, आपका प्रोग्रेस जो है वो स्टोर करना है, तो आप एक ही शीट में नहीं कर सकते। यस यू कैन स्टोर इट बट इट विल मेक सो कंफ्यूजिंग। दैट्स व्हाई उससे क्या होता है, बहुत ही हेक्टिक होता है आपका डेटा सॉर्ट करने के लिए। सो द इट इज नेसेसरी कि हम लोग क्या करें, हमारी जरूरत के हिसाब से अपना वर्कशीट का डेटा जो है वो क्या कर सकते हैं, हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। So that's why there is need for using the multiple worksheets. Then yes, as I have said that is multiple sheets are going to provide access to the multiple data. जितनी ज्यादा आप लोग शीट्स यूज करोगे उससे क्या होता है, इंटरडिपेंडेंसी जो है वो बढ़ जाती है। और yes, obviously we are going to handle the multiple data here. Okay, so that's why it is necessary to use the multiple worksheets whenever you are going to store something important documentation or we are going to store important information. So today we are going to start with the first project, setting up multiple worksheets and viewing sheet names and selecting sheets. Okay, so let's get started here. Just I will open new Microsoft Excel sheet. यहाँ पर मैंने Excel open कर लिया है Office 2019 का. Okay, now you can see here by default in 2019 here is only one sheet which is available. ओके आप लोग और पुराना वर्जन लोगे 2013 या 14 का, वहां पर बाय डिफॉल्ट ऐसे 3 शीट्स होती है, 1 2 एंड 3। ओके जैसे जैसे एडवांसमेंट बढ़ती गई है वहां पर क्या हो गया है, फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज होते गया है, बट हाँ वर्किंग उसका सेम रहेगा, जस्ट थोड़े से एडवांसमेंट्स जो है वो ऐड होते जाएंगे आपके एक्सेल में। ठीक है, अभी मैं इसको बाय डिफॉल्ट जो है वो वैसे रहने देती हूँ। सो दिस इज आवर शीट। यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर रोज होते हैं एंड कुछ पर्टिकुलर कॉलम्स भी होते हैं। सो जब कभी भी हम पर इस पर कोई वर्क करते हैं तो हमको इसको पहले क्या करना पड़ता है, सेव करना पड़ता है, देन हाउ टू यूज द पर्टिकुलर स्प्रेडशीट्स दैट वी आर गोइंग टू सी। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज viewing sheets names and selecting sheets. देखिए फिलहाल के लिए मैं क्या कर देती हूँ, इसमें और 2 शीट्स ऐड कर देती हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए बाय डिफॉल्ट 2 3 था, मैंने उसको डिलीट कर दिया है, तो यहाँ पर कौन से शीट्स आए गए हैं, नेक्स्ट 4 एंड 5 शीट्स। ओके, सो इट्स नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इज हाउ टू इंसर्ट शीट। देखिए आपने देखा कि इस शीट को कैसे इंसर्ट करना है, आराम से मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर बॉटम का जो है वो प्लस बटन है पर दबा दिया, उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, जितनी चाहिए उतनी शीट्स जो है हम लोग इंसर्ट करके ले सकते हैं। अगर आपको डायरेक्टली ये ऑप्शन नहीं यूज करना है, प्लस दैट इज देखिए प्लस यहाँ पर बोलता है कि न्यू शीट। ओके, सो यहाँ पर अगर आपको ये यूज नहीं करना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली यहाँ पर वी कैन सिट राइट क्लिक देन इंसर्ट एंड देन वी कैन यूज दैट वर्कशीट। ओके, देखिए ऐसे भी आपकी शीट जो है वो इंसर्ट हो सकती है। ओके, आई विल डिलीट इट नाउ। देखिए यहाँ पर 2 कौन से मेथड्स बताए, डायरेक्टली आप बाय यूजिंग द प्लस सिंबल न्यू शीट इंसर्ट कर सकते हो। अगर ऐसा आपको नहीं करना है तो आप लोग क्या कर सकते हो, इंसर्ट राइट क्लिक इंसर्ट एंड वर्कशीट। ओके, देयर आर सो मेनी अदर ऑप्शंस आल्सो, दैट इज एमएस एक्सेल 4.0 macros and charts and dialog boxes, and there are some many spreadsheet solutions. That is I can say that what it is, template. We have seen how to use the templates in Microsoft Word. So likewise we are going to have templates in Microsoft Excel also. अभी हम लोग ये यूज नहीं करने वाले हैं तो इसको रहने देते हैं। ठीक है, देखिए अभी हम लोगों ने सो इजीली वी हैव इंसर्टेड द न्यू शीट हियर। अभी हमको अगर न्यू शीट लेनी है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली फाइल देन न्यू ब्लैंक वर्कबुक ले सकते हैं और या फिर हम लोग उसके टेम्पलेट्स भी
यूज कर सकते हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या कर दिया, फिर फाइल ओपन करके हम जो क्या है, जो पहले के वर्कबुक है वो भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए हम लोग क्या करते हैं, सपोज आई एम गोइंग टू यूज, यहाँ पर क्या है, बहुत सारी है, पर्सनल मंथली बजट हम लोग ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर मॉर्गेज और रेंट के लिए फोन, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर एनसी, और उसके बाद केबल है, वेस्ट रिमूवल है, मेंटेनेंस और रिपेयर, सप्लाईज एंड ऑर्डर्स। ठीक है, प्रोजेक्टेड कॉस्ट, देन एक्चुअल कॉस्ट हमको कितना जा रहा है, देन डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस हियर, देन इंटरटेनमेंट के लिए कैसे, ये जो है आपके क्या है, पहला सा ही रेडीमेड टेम्पलेट जो है आपके लिए अवेलेबल है। सो हम लोग ये भी यूज कर सकते हैं अपने खुद के, अगर सपोज हमको भी अपना पर्सनल बजट बनाना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं, वो हम लोगों ने क्या क्या सेपरेट कर दी है, दैट इज इट इज रेडीमेड अवेलेबल इन योर वर्कशीट। Okay, so likewise we can calculate the personal monthly budget of your expenses. So right now I am going to close the ready-made available template here. ठीक है, अब हम लोगों ने देख लिया कि how to insert the sheets in your Microsoft Office Excel. So next point is that is how to rename sheets, delete sheets and linking the sheets. देखिए रिनेम जो है बहुत ही आसान है, हम लोगों ने कल रिनेम का ऑपरेशन नहीं लिखा था, सो दैट्स व्हाई आई हैव लेफ्ट इट इंटेंशनली, क्योंकि हमारा कल का मोटो था यूजिंग द एनालिसिस। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम राइट क्लिक कर रिनेम कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर रिनेम कर दिया, अभी मैं यहाँ पर लिख दूंगी डेटा 2019, so easily I have renamed, then I will rename it as the data 2020। ठीक है, अभी नेक्स्ट शीट को मैं रिनेम करके दे दूंगी नाम, suppose I am going to have the addition of data 2019-20, that is analysis of both, analysis of 19 and 20. ठीक है, likewise I have given name to the particular sheets here, data 2019, data 2020, analysis of the 2019-20। अभी आपको एक बात मैंने पहले से ही बता दी है, फिर भी आई विल रिपीट इट, दैट इज हाउ टू डिलीट शीट। देखिए यहाँ पर ऐड किया है, वैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको डायरेक्टली डिलीट कर सकते हैं बाय क्लिकिंग राइट क्लिक एंड डिलीट। आई विल क्लिक ऑन द राइट एंड डिलीट। अभी सपोज बाय चांस आपको क्या लगेगा कि ये सीक्वेंस जो है मैंने ठीक से अरेंज नहीं किया हुआ है, सपोज मुझे क्या करना है, यहाँ पर डेटा 2020 को जो है मुझको लास्ट को रखना है, तो उसको कैसे करें, देखिए उसको राइट क्लिक करें, देन मूव और कॉपी टू दी, मूव टू दी एंड करना है सपोज, ओके, एंड क्रिएट अ कॉपी। ओके ठीक है, मैंने यहाँ पर इसकी क्या कर दी, कॉपी बना दी। अभी मुझे इसको मूव करना है, देन मूव और कॉपी, मूव टू एंड। ठीक है, मूव टू एंड यहाँ पर मैं क्या करूंगी, क्रिएट अ कॉपी जो चेक बॉक्स है उसको चेक नहीं करूंगी। सो क्या हो गया, ये डेटा जो है डायरेक्टली मूव होकर कहाँ पर चला गया, एनालिसिस ऑफ 1920। अगर इसको हम लोगों को डायरेक्टली करना है माउस से, तो बाय यूजिंग ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड आप लोग कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर से मैंने क्या कर दिया, इसको यहाँ पर अभी शिफ्ट कर दिया है। सो वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, इसको भी यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं। देखिए एनालिसिस ऑफ 1920 को मैंने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया। इसको फिर से मैं क्या कर देती हूँ, उसके ओरिजिनल प्लेस पे लग देती हूँ। सो यहाँ पर हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं, या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली राइट क्लिक, मूव और कॉपी, उसकी कॉपी भी बना सकते हैं, और मूव टू द एंड, दैट इज बिफोर शीट डेटा 2019। ठीक है, इसके पहले रख दिया, मुझे नहीं चाहिए, फिर से मैंने क्या कर दिया, ओरिजिनल शीट को एज इट इज इन द सीक्वेंस रख दिया। ठीक है, so now suppose I am going to take the same thing like in the previous session, that is I am going to have the roll number, suppose 1 2 3 and 4। ठीक है, देन सब्जेक्ट के नाम मैंने ले लिए हिंदी, इंग्लिश, एंड नेक्स्ट वन इज आई एम टेकिंग साइंस। ओके, थोड़ा सा इसको अच्छे से फॉर्मेट करके लेते हैं हम लोग। ओके, और अभी हम लोग क्या कर देते हैं, इसका भी फॉन्ट जो है थोड़ा सा बढ़ा देते हैं।
ओके, थोड़ा सा इसको मैंने अभी कर दिया फॉर्मेटिंग ठीक से। फॉर्मेटिंग इसके लिए करनी है ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग जो है वो आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के जो भी है रिलेटेड अंडरस्टैंड हो जाए। ठीक है, हिंदी, इंग्लिश एंड हिंदी, ठीक है, एंड साइंस। ओके, मैंने मार्क्स लिख लिए यहाँ पर 78, उसके बाद मैंने यहाँ पर मार्क डाल दिए 89, 80, 96, 86, यहाँ पर लिख दिया मैंने 78, 92, ठीक है, कर्सर गलत जगह चला गया। देन 95 आई एम गोइंग टू राइट, देन 90, यहाँ पर मैंने लिख दिया 90, 92, 75, देन 72, ठीक है, ऐसे कुछ तो मैंने मार्क्स लिख दिए यहाँ पर। देन डेटा 2020 में भी मुझे सेम वही अप्लाई करना है, ठीक है। सो आई विल कॉपी दिस ऑल एंड जस्ट आई एम गोइंग टू चेंज द वैल्यूज हियर, ठीक है। रोल नंबर, हिंदी एंड इंग्लिश एंड साइंस, ऐसे हम लोगों ने मार्क्स यहाँ पर लिख लिए। थोड़े से मार्क्स चेंज कर देते हैं हम लोग। 89, 86, 77, 79, 98, 99, 96, 94, 95, 96, 85, 82। अभी मुझे क्या करना है, देखिए लास्ट टाइम हम लोग ने हाउ टू कंसोलिडेट डेटा इनटू डिफरेंट बाय यूजिंग डायरेक्ट कंसोलिडेशन ऑप्शन। अभी हम लोगों को क्या करना है, इंस्टेड ऑफ यूजिंग द कंसोलिडेशन हम लोगों को क्या करना है, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट हमको डायरेक्टली सम लेना है बाय यूजिंग द फॉर्मूला। सो वो कैसे लेना है आज हम लोग देखेंगे। दैट्स व्हाई वी कैन से द लिंकिंग बिटवीन द टू शीट्स और मोर देन टू शीट्स। यहाँ पर मैं नाम लिख देती हूँ, स्टूडेंट डेटा 2019। इसका थोड़ा सा फॉर्मेटिंग ठीक से कर लेते हैं हम लोग। वैसे हम लोग क्या कर देते हैं यहाँ पर भी, स्टूडेंट डेटा 2020। कलर जो है इसका हम लोग चेंज कर देते हैं एंड फॉन्ट साइज जो है इसके बढ़ा देते हैं। एनालिसिस ऑफ डेटा 2019 एंड 2020, ऐसा ये शीट को मैंने लेबल दे दिया। सो अभी हम लोग क्या कर देंगे, हिंदी का 2019 एंड 20 का डेटा जो है कंबाइन लेंगे, रोल नंबर 1 का वो हम लोग ले लेंगे, जैसे कि हम लोगों ने कंसोलिडेट में दे दिया था। पर कंसोलिडेट जो था हमको क्या था, रेडीमेडली अवेलेबल था, हम लोगों ने उसके लिए कुछ स्पेशल नहीं किया था, डायरेक्टली उसको क्या किया था, क्लिक किया था, उसमें रेफरेंस ऐड कर देते और बाय यूजिंग द सम फॉर्मूला वी हैव पुट द थिंग्स इन द थर्ड शीट। अब यहाँ पर हम लोग देखिए क्या करेंगे, अभी मुझे शीट 1 का नाम क्या है, डेटा 2019 एंड शीट 2 का नाम क्या है, डेटा 2020। सो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दो शीट्स के पहले सेल्स देखेंगे हम लोग, सेल बाय सेल जाएंगे। यहाँ पर कौन सा सेल है, C5, हिंदी का रोल नंबर 1 का सेल जो है वो C5 है, यू कैन क्लिक हियर एंड चेक C5। वैसे ही हम लोग यहाँ पर देखते थे, यहाँ पर भी कौन सा सेल है, स्टूडेंट डेटा 2020 का C5। ओके, ये सेल हम लोगों को पहले आइडेंटिफाई करके लेना है। सो आई हैव आइडेंटिफाइड इट। अभी हम लोग क्या करेंगे, इज इक्वल्स टू, अभी शीट का नाम क्या है देखिए, डेटा 2019 ऐसा पूरा नाम है, बट आई एम नॉट श्योर वेदर इट विल रन और नॉट, बिकॉज यहाँ पर थोड़े से फॉर्मूलाज जो है वो गलत हो सकते हैं। लेट अस सी वेदर इट विल रन और नॉट। और कोलन मैंने दे दिया ताकि वो क्या है, डेटा 2019 डॉट शीट, द नेम ऑफ द शीट, उसके बाद क्या होता है हमारा सेल नंबर, ये ऐसा फॉर्मूला होता है C5 प्लस डेटा 2020 देन कोलन
C5. So let us press enter here. Okay, एंटर करने से पहले हम लोग को क्या करना है, उसको सेव करके लेना है. ओके, सो उसके लिए हम लोग पहले क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप यहाँ पर अभी फिलहाल के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको सेव करके देते हैं. दैट इज यहाँ पर सेव करने से पहले हम लोग को क्या करना है, उसका नाम देना है. लाइक हम लोग नाम दे देंगे उसको एनालिसिस, और हम लोग उसको सेव करके देंगे. ठीक है, अभी यह फॉर्मूला हम लोगों ने डाल दिया और यहाँ पर एंटर दबा दिया. ठीक है, यहाँ पर देखिए कुछ नहीं हो रहा है, डायरेक्टली इट इज आस्किंग टू ओपन दी न्यू थिंग हियर. सो व्हाई इट इज गोइंग टू हैपन हियर, देखिए अभी हम लोगों ने फॉर्मूला तो डाल दिया, ये जो है उसका एक्चुअल ओरिजिनल फॉर्मूला है, पर यहाँ पर क्या हो रहा है, नाम जो है अपना वो थोड़ा सा गलत हो रहा है. यहाँ पर देखिए अभी यहाँ पर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, देखिए इफ यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग, जस्ट व्हाट यू हैव टू डू, आई विल डिलीट दिस अगेन. इज इक्वल्स टू हम लोग क्या करेंगे, अभी देखिए यहाँ पर नाम देखिए कैसा लिखना है, डेटा 2019 जो है वो सिंगल कोट्स में है पूरा का पूरा. तो वैसे ही हम लोग एज इट इज ले लेंगे, डेटा स्पेस 2019 कोलन, और कोलन के बाद क्या करना है, उसका सेल नंबर C5 प्लस. अभी वैसे ही हम लोगों को यहाँ पर भी देखना है, देखिए डेटा 2020 कोलन, बाय डिफॉल्ट उसने सेलेक्ट करके ले लिया, हमको भी जरूरत नहीं है कि उसको सेलेक्ट करें. हमको क्या करना है, फिर सिर्फ सेल नंबर जो है वो लेना है, और एंटर. देखिए यहाँ पर क्या आ गया, उसका टोटल आ गया. सो इन दिस वे वी कैन यूज दैट इज लिंकिंग ऑफ द पर्टिकुलर डेटा. अभी सेम वे में क्या करूंगी, ये ऑटो फिल करके ले लूंगी. तो यहाँ पर क्या होगा, 1 2 3 4, ये आगे पूरे हिंदी के मार्क्स. और वैसे ही हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर ले लेते हैं. ओके, यहाँ पर देखिए बाय डिफॉल्ट उसने क्या कर लिया, उसने उसको ड्रैग कर लिया D5, देन E5, देन D6, D7, D8, E6, E7 and E8. So easily we can access this particular data. पर अभी समझ लीजिए हम लोगों ने क्या कर दिया, फिर से इसका रीनेम जो है वो शीट 1 कर दिया. देन यहाँ पर उसका नेम जो है मैंने शीट 2 कर लिया. अभी देखिए यहाँ पर क्या होता है, उसने बाय डिफॉल्ट उसको चेंज कर लिया ऑटोमेटिकली. फॉर्मूला बार में जो है क्या हो गया, रीनेम होने के बाद यहाँ पर भी उसका नेम जो है वो चेंज हो गया. इफ यू ऑब्जर्व हियर, सॉरी, नाउ इफ यू ऑब्जर्व इन दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला, यहाँ पर जो हम लोगों ने डेटा 2090 को सिंगल कोट्स में लिया था, वो सिंगल कोट्स जो है वो गायब हो गया. यस ऑब्वियसली, बिकॉज उसका नाम जो था वो थोड़ा सा क्या था, फॉर्मेटेड था, और हम लोगों ने उस नाम में थोड़ा सा स्पेस दिया था. तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, whenever you are going some simple name as it is, उसके लिए हमको क्या लगता है, यहाँ पर सिंगल कोट्स की जरूरत नहीं पड़ती. बट अगर हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नाम देते हैं, जैसे कि अभी हम लोगों ने यहाँ पर दिया था, बार फिर से हम लोग देख देते हैं यहाँ पर नाम. ओके, यहाँ पर फॉर्मूला अभी भी सिलेक्टेड है. ठीक है, आई विल रीनेम इट डेटा 2019, एंट्री नेम डेटा 2020. ओके, और हम फिर से फॉर्मूला चेक कर लिए, देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिकली उसने क्या कर दिया, रीनेम कर दिया, और दोनों के दोनों जो नाम थे वो सिंगल कोट्स में डाल दिए. सो इट इज सो इजी, दैट इज हाउ टू लिंक द पर्टिकुलर शीट डेटा इन द सेम वर्कबुक. यहाँ पर सेम वर्कबुक है, और उसी वर्कबुक के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, शीट का जो डेटा है वो यूज करके ले रहे हैं. ओके, नाउ आई विल से इट अगेन. इट इज गुड प्रैक्टिस टू सेव. डायरेक्टली हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइल सेव, और बाय यूजिंग द कीबोर्ड की दैट इज Control plus S, we can save our data. Okay, so this is all about, that is how to link the spreadsheet data in the same workbook. So हम लोगों ने इंसर्टिंग शीट्स भी देख लिया, रिनेमिंग, डिलीटिंग एंड दी लिंकिंग शीट्स. ठीक है, अभी हम लोगों ने जो पॉइंट दिखा था ये क्या था, लिंकिंग शीट बिटवीन दी सेम वर्कबुक, इन द सेम वर्कबुक हम लोगों ने देखा था.
अभी हम लोगों को यहाँ पर क्या करना है, वी हैव टू लिंक दी अदर शीट्स डेटा। ठीक है, हम लोगों ने कल एग्जाम्पल देखा था एक बुक 1 का, तो फिर उसके जो डेटा है और उसका जो लिंक है हम लोग क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करके ले लेंगे। ठीक है, आई विल इंसर्ट द न्यू शीट। यहाँ पर न्यू शीट कैसे इंसर्ट करनी है, बाय यूजिंग द प्लस सिंबल। ओके, आई विल डिलीट इट। अगर ऐसे नहीं करना तो हम लोग क्या कर सकते हैं, राइट क्लिक एंड इंसर्ट। ओके, वर्कशीट। ठीक है, अभी यहाँ से मूव हम लोग क्या कर देते हैं, इसको डायरेक्टली यहाँ पर कर लेते हैं लास्ट को, ताकि हमारा सीक्वेंस अच्छे से बना रहे। ओके, सो नाउ व्हाट पॉइंट वी आर गोइंग टू स्टडी नेक्स्ट, दैट इज लिंकिंग शीट्स। तो हो गया हमारा, क्रिएटिंग लिंक्स टू द अदर शीट्स। अब यहाँ पर देखिए हम लोगों को क्या करना है, उसके लिए पहले हम लोग क्या करेंगे, डेटा में जाएंगे एंड वी आर गोइंग टू गेट डेटा फ्रॉम फाइल। देखिए फिर से एक बार आपको देखो बता देती हूँ, गेट डेटा, इट इज गोइंग टू इजिली डिस्कवर, कनेक्ट एंड कंबाइन डेटा फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज, देन शेप एंड रिफाइन इट टू मीट योर नीड्स। ठीक है, सो ऐसे हम लोग कर सकते हैं, या फिर अभी हम लोगों को रेडीमेड जो है वो यूज करने हैं, तो डायरेक्टली हम ओपन कर सकते हैं, पर हम यहाँ पर ओपन नहीं करना है, हमें यहाँ पर क्या करना है, उसको इंपोर्ट करके लेना है। सो आई विल क्लोज इट and just check whether there are existing connection. There are no connections here because मैंने अभी तक कुछ भी डेटा अब तक import करके नहीं लिया है। Okay, so I will just click somewhere in the my sheet. The next thing what I am going to do is get data. अभी देखिए यहाँ पर from file है, then from database है। ठीक है, अभी आपको लोगों को database अभी के लिए नहीं है, we are going to see the what is the database afterwards। एक दो चैप्टर के बाद हम लोग देख सकते हैं, that is how to use the database। so I am going to use what, from file। देखिए from file में एक पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं है, यहाँ पर you can use from workbook also, then from text or CSV, from XML, from JSON and lastly from folders। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस है। so फिलहाल के लिए हमको क्या करना है, फ्रॉम वर्कबुक देखते हैं, उसके बाद फ्रॉम फोल्डर हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं, देन फ्रॉम द अदर ऑप्शंस आल्सो। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू क्लिक द ऑप्शन फ्रॉम वर्कबुक। ठीक है, देखिए यहाँ पर पहले से ही क्या है, 1 2 3 माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल की वर्कबुक अवेलेबल है। ठीक है, अभी हम लोग क्या कर देते हैं, बुक 1 की है जो है वो इंपोर्ट करके लेंगे। क्लिक ऑन द बुक 1 एंड इंपोर्ट। नाउ इफ यू रिमेम्बर, अगर आपको याद आता है तो यहाँ पर क्या है, बहुत सारी शीट्स है। तो फिलहाल के लिए मैं क्या कर लेती हूँ, एक पर्टिकुलर शीट जो है इसका प्रीव्यू हमको दिखता है, उसको लोड करके लेती हूँ। देखिए यहाँ पर आपको डेटा आ गया, स्टूडेंट डेटा फॉर द ईयर 2019। देन यहाँ पर कॉलम्स के कुछ नेम हम लोगों ने दिए नहीं थे, तो एज इट इज क्या हो गया, कॉलम आ गया। यहाँ पर एक शीट आ गई नहीं। अभी हम लोग क्या करते हैं, फिर से डेटा को इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम फाइल, फ्रॉम वर्क। ठीक है, मैंने सेम क्लिक किया और इंपोर्ट कर दिया बुक 1 को। अभी मैं क्या करूंगी, सेलेक्ट मल्टीपल फाइल्स। तो यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, शीट 1, शीट 2। देखिए शीट 2 कौन सी थी, और उसका कॉम्बिनेशन आई थिंक शीट 3 ने, शीट 3 सब टोटल का था हमारा। ठीक है, यहाँ पर एडिशन का था, स्टूडेंट डेटा फॉर द ईयर 2021। ओके, शीट 13 आई थिंक नहीं है वहां पर। ओके, आई विल लोड इट। सो यहाँ पर एक से ज्यादा फाइल्स हम लोगों ने ली हुई हैं शीट्स की, तो थोड़ा सा टाइम तो यहाँ पर लगेगा। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं शीट 1 का डेटा। देन नेक्स्ट व्हाट, हम लोगों ने एक ही शीट में इसको अप्लाई करके लिया है, शीट 2 का डेटा। वी कैन सेलेक्ट इट हियर, देन यहाँ पर शीट 2 है, ओके, एंड शीट 13 इज देयर। ओके, सो हम लोगों ने एक ही शीट में इसको क्या कर लिया, पूरा का पूरा इंपोर्ट करके ले लिया है। अब मैं इसको फिर से डिलीट कर देती हूँ। ओके, आई विल डिलीट दिस आल्सो। अभी हम लोग यहाँ पर कनेक्शन देखते हैं, तो एग्जिस्टिंग कनेक्शंस में इतने सारे कनेक्शंस आ गए हैं।
तो हम लोग क्या कर देते हैं, उसको एडिट कनेक्शन प्रॉपर्टीज में जा सकते हैं और उसकी कुछ पर्टिकुलर डेफिनेशन जो है वो हम लोग चेंज कर सकते हैं. सो दीज आर सम हाउ डेटाबेस रिलेटेड क्यूरीज. ये क्यूरीज जो होती है वो जनरली कैसी होती है, डेटाबेस रिलेटेड होती है. अभी मैं क्या कर देती हूँ, सारे कनेक्शन जो हुए डिलीट कर देती हूँ. आई विल डिलीट इट एंड देखिए वहां पर कर्सर ले जाने के बाद ही आप लोगों को क्या दिखता है, उसके कंटेंट जो है वो दिख जाते हैं. आई विल क्लोज इट फॉर नाउ. अभी हम लोग क्या कर देते हैं, फिर से गेट डेटा फ्रॉम फाइल फ्रॉम वर्कबुक बुक 1 इंपोर्ट, देन सेलेक्ट मल्टीपल फाइल्स. मैंने शीट 1 और शीट 2 का डेटा ले लिया है और शीट 3 भी ले लूंगी. ठीक है, ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. ठीक है, अभी ये शीट में क्या हो गया है, यहाँ पर क्यूरीज जो है वो आ गई है. यू कैन सी. मैं क्या कर देती हूँ, थोड़ा सा टूल बार का जो फॉर्म है वो यहाँ पर ला देती हूँ. देखिए यहाँ पर कितनी क्यूरीज है, 3 क्यूरीज है. इफ यू सी हियर, अभी इसको शो करके लीजिए. यहाँ पर क्या होता है, आपका डेटा जो है वो आ जाता है. अभी इसके अलावा हम लोग क्या करते हैं, इसको मैं क्या कर देती हूँ, फिर से डिलीट कर देती हूँ. अभी हम नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे, दैट इज ट्रांसफॉर्म. Get data from file from workbook book 1, then select multiple files, sheet 2. okay, now load to हम लोग क्या कर देते हैं, हम लोग इसका टेबल ले लेते हैं. अभी तक हम लोगों ने क्या किया था, वी हैव क्रिएटेड ओनली कनेक्शन देयर. हम लोगों ने सिर्फ वहां पर कनेक्शन क्रिएट करके लिया था, उसको हम लोगों ने पर्टिकुलरली लोड करके नहीं लिया था. देखिए इफ यू सी हियर, ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्या हो गया है, 2 नई शीट्स क्रिएट हो गई हैं. यहाँ पर स्टूडेंट डेटा फॉर दी ईयर 2019 एंड स्टूडेंट डेटा फॉर द ईयर 2020 यहाँ पर इंपोर्ट हो गया है. सो लाइकवाइज वी कैन यूज दी लोडिंग आल्सो. अभी तक हम लोगों ने क्या किया था, डायरेक्टली उसका कनेक्शन किया था और वी कैन सी द क्वेरी, दैट इज हाउ द कनेक्शन वाज मेड बिटवीन दी 2 पर्टिकुलर डेटा शीट्स. अभी हम लोग फिर से क्या कर लेते हैं, डेटा गेट डेटा फ्रॉम फाइल फ्रॉम वर्कबुक. अभी शीट 4 में क्या है, आई डोंट रिमेम्बर. ठीक है, वहां पर सब कनेक्शन डिपेंडेंसीज है. ठीक है, ये वाला हम लोग ले लेते हैं, शायद दिस इज आई थिंक ऑफ सब टोटल्स. अभी हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म डेटा करके देखेंगे क्या होता है. ठीक है, ट्रांसफॉर्म डेटा करके क्या हो गया, उसने क्यूरी में यूज करके ले लिया. ओके एंड आई विल क्लोज इट. ओके कीप. देखिए यहाँ पर डेटा ट्रांसफर करके क्या हो गया, वो आ गया. If you remember in previous session that what we had done the subtotals. So यहाँ पर हो गया क्या, हमारा मुंबई का काउंट, देन पुणे, दिल्ली एंड बैंगलोर का काउंट. okay, so in this way what we can do, we can create links to the other sheets also. ठीक है, ये लोग हम लोगों ने क्या कर लिया, देखिए अब तक हम लोगों ने शीट्स जो है वर्कशीट है उस पर ही ऑपरेशन परफॉर्म करके ले लिया. ठीक है, अभी शीट 18 खाली है, मैं इस क्लास में ले लेती हूँ. कनेक्शन क्यूरीज फिलहाल के लिए क्लोज कर देती हूँ. अभी हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्मेट का डेटा जो है वो फाइल से ले लेंगे. ठीक है, फ्रॉम टेक्स्ट. ठीक है, अभी मेरे पास वो नहीं है, फ्रॉम फोल्डर में ले लेती हूँ. अभी यहाँ पर क्या करते हैं, फोल्डर का पाथ. ओके, आई एम गोइंग टू माय डॉक्यूमेंट्स हियर, देन सपोज आई एम गोइंग टू यूज दिस फोल्डर. ओके, देखिए आईसीटी क्लास 10 ये फोल्डर को मैंने यहाँ पर इंपोर्ट करके लिया. देखिए, सो यहाँ पर मेरे क्या है, सारी जो बनाई हुई पीपीटीज है वो डेटा एक्सेस, डेटा मॉडिफाइड, फोल्डर पाथ जो है वो पूरा का पूरा जो है वो लोड हो सकता है. ठीक है, देखिए यहाँ पर फिलहाल के लिए इसको मैं साइड पर रख देती हूँ. यू कैन सी हियर इनसाइड माई फोल्डर
कौन से टाइप का है वो डेटा, उसका डेट कब एक्सेस की हुई थी, डेट लास्ट कब मॉडिफाई किया था हम लोगों ने, उसके बाद डेट कब क्रिएट किया हुआ था, देन उसका फोल्डर का पाथ. Okay, so likewise what we have done, we have used this particular spreadsheet. So by using this spreadsheet हम लोगों ने क्या कर दिया, फोल्डर की पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर एक्सेस करके ले ली. उसका डेटा जो है इट्स टोटल इंफॉर्मेशन वी हैव इंपोर्टेड हियर. उसका एक्सटेंशन क्या था, .pptx, और कुछ खा था .xls. ठीक है. सो अभी उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, डेटा में अभी हम लोग फ्रॉम टेक्स्ट फाइल से कैसे इंपुट कर लेते हैं. सो यहाँ पर कस्टम ऑफिस टेम्पलेट्स में कुछ है क्या, मैं देखती हूँ. आई थिंक डॉक्यूमेंट्स में होना चाहिए. ठीक है, मेरे पास आई थिंक कोई टेक्स्ट डॉक्यूमेंट नहीं है, तो फिर मैं क्या करती हूँ, उसको बना के ले लेती हूँ. बट एक पर्टिकुलर टेम्पलेट ही ले लेती हूँ फिलहाल के रेडीमेड, एंड आई विल सेव इट. I will write it as the word. ओके, यहाँ पर टेम्पलेट यूसेस था, किसी कोई बात नहीं, हम लोग ले लेते हैं. ओके, आई विल सेव इट हियर. एंड व्हाट आई विल गोइंग टू डू, फ्रॉम टेक्स्ट. ओके, आई थिंक मैंने उसका पार्ट ठीक से नहीं देखा है. उसका पार्ट जो है कहाँ पर सेव है वो पहले देख लेते हैं. उसको ऑल फाइल्स कर लेते हैं. ठीक है, यहाँ पर है क्या वो, वर्ड एग्जाम्पल. ठीक है, वो क्या हो रहा है अभी डायरेक्टली क्यूरीज में है, उसको हम लोग ट्रांसफॉर्म करके ले लेते हैं. देखिए उसके फाइल के कंटेंट्स जो है वहां पर ले लेते हैं. नाउ ओके, दिस की didn't return any columns in Microsoft Excel can use. Why? Because यहाँ पर क्या हो रहा है, ये एक्सटर्नल डेटा जो है वो कौन से फॉर्मेट में है, वर्ड फॉर्मेट में है. यहाँ पर कोई कॉलम से पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन नहीं है. दैट्स वाई यहाँ पर सिर्फ वो इतना बताएगा कि वो क्या है, एक एक्सटर्नल पर्टिकुलर डेटा है. यहाँ पर अगर हम लोग क्या करेंगे, उसका कनेक्शन जो है एग्जिस्टिंग कनेक्शन में चेक करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कनेक्शन टू दी वर्ड एग्जाम्पल. ओके, सो नाउ हियर हम लोग क्या कर सकते हैं, ओनली क्रिएट कनेक्शन. लाइकवाइज व्हाट वी कैन डू, अगर आपका कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट एक्सेल में मौजूद नहीं है तो क्या कर सकते हैं, सिर्फ कनेक्शन बना सकता है, नहीं तो वो क्या करता है, आपका डेटा जो है पूरा का पूरा टेबल में इंपोर्ट करके देगा. ओके, सो लाइकवाइज वी यूज द डिफरेंट ऑप्शंस टू import the data from the various files or folders. ठीक है, ये हो गया अभी क्रिएटिंग लिंक्स टू अदर शीट्स. अभी हाइपर लिंक्स टू अदर शीट्स ये क्या है, ये आज हमको देखना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज मीन बाय द हाइपर लिंक टू द शीट्स. हाइपर लिंक क्या होती है, देखिए जनरली हाइपर लिंक इज अ लिंक which is going to open the another sheet, another image, another document or another any related particular file. यहाँ पर हाइपरलिंक का मतलब क्या होता है, एक लिंक होती है जिस लिंक पर हम लोग क्लिक करते हैं और वो क्या कर देती है, एक पर्टिकुलर अनदर फाइल ओपन करती है. जैसे कि आप लोग देखिए गूगल में आप लोगों ने टाइप किया एक पर्टिकुलर रिसर्च मेथड, लाइकवाइज यू हैव टाइप youtube.com. सो उस youtube.com पर आप लोग क्लिक करोगे तो वो क्या करता है, डायरेक्टली आपको यूट्यूब के लिंक जो है वो ओपन करके दे देता है. तो हम क्या कह सकते हैं, ये क्या हो गई, एक पर्टिकुलर हाइपर लिंक होगी. सो वैसे ही हाइपर लिंक हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑफलाइन मोड में भी यूज कर सकते हैं. वी कैन यूज दिस टू मोड्स, फर्स्ट फॉर ऑनलाइन एंड सेकंड वन इज द ऑफलाइन. नाउ वी कैन सी दैट इज हाउ टू यूज द हाइपर लिंक्स इन द शीट्स. So I will open my sheet here. ठीक है, क्यूरीज जो है वैसे ही रहने देते हैं. हाँ ठीक है, दिस इज द ब्लैंक वन. अभी हम लोग क्या कर देते हैं, देखिए फाइल हम लोग पहले देख लेते हैं कौन कौन सी है. ठीक है, एनालिसिस बुक वन आफ्टर रिपोर्ट्स. अभी यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे, एक डेटा जो है उसको लिंक करके ले लेंगे. देखिए यहाँ पर ऑप्शन क्या पर आपको दिख रहा है क्या, नहीं. सो यहाँ पर लिंक का एक ऑप्शन है, हम लोग क्या कर सकते हैं, वो लिंक के ऑप्शन को जो है वो डायरेक्टली
इंसर्ट करके ले सकते हैं। इफ यू गो टू द डेटा, इट इज नॉट अवेलेबल इन द डेटा, हाइपरलिंक डेटा में अवेलेबल नहीं है। आप लोग होम में भी देख लो, पहले फाइल में भी देख के ले लीजिए कहाँ पर है क्या, यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, इंसर्ट जो है, इंसर्ट में यू कैन सी मेनी ऑप्शंस है, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस है। तो उस ऑप्शन में से हम लोग क्या कर सकते हैं, हाइपरलिंक जो है वो यूज कर सकते हैं। इफ यू सी हियर, देखिए कहाँ पर हाइपरलिंक मौजूद है, स्लाइसर, टाइमलाइन और लिंक्स। देखिए लिंक्स जो है यहाँ पर हाइपरलिंक के बारे में लिखा हुआ है, एड अ हाइपरलिंक, it is going to create a link in your document for quick access to web pages and file. Hyperlinks can also take you to the places in your document. ठीक है, ये डॉक्यूमेंट में यूज कर सकते हैं, और जनरली हम लोग क्या कर सकते हैं, वेब पेजेस के लिए भी हम लोग ये यूज कर सकते हैं। ठीक है, और उसकी शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+K। ठीक है, सो आई कैन यूज द एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज, और हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। सो यहाँ पर देखिए बहुत सारे जो है लिंक्स है। ठीक है, अभी मैंने ये टेम्पलेट यूसेज का जो था एग्जांपल वो ओपन करके ले लेती हूँ। एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज, और प्लेस इन द डॉक्यूमेंट, क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट और ईमेल एड्रेस। ठीक है, पहले हम लोग एग्जिस्टिंग फाइल के लिए देखते हैं वर्ड एग्जाम्पल। ओके, देखिए यहाँ पर डायरेक्टली क्या होगा, देखिए हाइपरलिंक जनरली क्या होती है, ब्लू लाइन में होती है, वहां पर ले जाने के बाद अपना कर्सर जो है वो चेक हो जाता है। एंड यू कैन सी द ऑप्शन हियर, दैट इज सी यूजर फाइल्स। हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कैसे कि उसने यूज कर दिया है यूजर फाइल्स, then path of the particular document, documents, word example dot doc, click once to follow, click and hold to select the cell। इसने क्या कर दिया, डायरेक्टली वो पर्टिकुलर फाइल जो है जो हम लोगों ने हाइपरलिंक में ले ली थी वो ओपन कर दी। आई विल प्लेस इट अगेन हियर एंड यस इट इज ओपन। अभी हम लोग क्या कर देते हैं, हाइपरलिंक जो है अभी एक स्प्रेडशीट को दे देते हैं। ठीक है, book1.xls। यहाँ पर हम लोगों ने क्या कर दिया, डायरेक्टली देखिए हमारे जो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो शीट यूज की हुई थी वो यहाँ पर डायरेक्टली ओपन हो गई। सो इजीली वी कैन यूज दी hyperlinks। okay, I hope you understood all these points, that is how to use the hyperlink। अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको डिफाइन नेम करते हैं। डिफाइन नेम मतलब क्या है, इसका जो नेम है वो हम लोग लिख सकते हैं और उसको कमेंट्स भी दे सकते हैं। ठीक है, अभी इसका नेम हम लोग क्या कर देते हैं, ओपन स्टूडेंट डेटा, और यहाँ पर हम लोग कमेंट दे देते हैं ओपन्स अ वर्कबुक ऑफ स्टूडेंट डेटा फॉर द ईयर 2019 and 2020। यहाँ पर हम लोगों को जनरली क्या लिखना पड़ता है, एड्रेस। अभी हम लोग यहाँ पर ले जाते हैं और उसको क्लिक करते हैं। देखिए इट इज गोइंग टू ओपन इट। सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो उसका नाम क्या हो गया, यहाँ पर स्टूडेंट डेटा। ओके, सो लाइकवाइज वी कैन चेंज द नेम ऑफ द हाइपरलिंक हियर आल्सो। देखिए आई विल राइट क्लिक अगेन एंड हम लोग क्या करते हैं, उसको डिफाइन नेम कर देते हैं। ओके, नेम क्या हो गया उसका, book1.xls। अभी हम लोग क्या करते थे, स्टूडेंट डेटा डॉट student1.xls। okay, so likewise what we are going to do, we are going to use the hyperlinks। so the next point what we are going to do is, we are going to see how to insert the hyperlinks for the web pages। वेब पेजेस को हम लोग हाइपरलिंक कैसे यूज कर सकते हैं। सो अभी हम लोग देखेंगे हाउ टू इंसर्ट हाइपरलिंक इन द डॉक्यूमेंट फॉर द वेब पेजेस। ठीक है, सो यहाँ पर हम लोग क्या कर देते हैं, फिर से लिंक को क्लिक कर देंगे एंड यस ऑब्वियसली हम लोग एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज यहाँ पर क्लिक करते हैं। ठीक है, उसका एड्रेस हम लोग ले देंगे https://www.unacademy.com।
डॉट कॉम। ठीक है, यहाँ पर देखिए वेब पेज जो है वो इंसर्ट हो गया है। देयर इज लिंक टू द वेब पेज। ओके, सो क्लिक वंस टू फॉलो, क्लिक एंड होल्ड टू सेलेक्ट द सेव। देखिए डायरेक्टली आपकी क्या होती है, जो वेब पेज है वो ओपन हो जाता है। सो इन दिस वे वी कैन यूज द hyperlinks to the web pages also. For example, I am going to write here again, I am going to insert the link for the existing file or web page. https www.google. सो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली क्लिक करते हैं और गूगल जो है वो ओपन अप डायरेक्टली होगा। या फिर अब हम क्या कर सकते हैं, बाय यूजिंग कंट्रोल प्लस के वी कैन हैव द इंसर्टिंग ऑफ द हाइपरलिंक। ठीक है, ये हो गया। क्या होगा, हम लोगों ने दूसरे डॉक्यूमेंट में हाइपरलिंक कैसे यूज करनी है वो हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद वेब पेजेस कैसे डालने हैं वो देख लिया। अभी इन द सेम शीट हमको हाइपरलिंक यूज करनी, तो वो हम भी यूज कर सकते, हम लोग यूज कर सकते हैं। यहाँ पर लिख, आई विल राइट इंसर्टिंग हाइपरलिंक फॉर सेम शीट। ओके, दिस इज वेब पेज हाइपरलिंक। कोई बात नहीं, हम लोग इसको इसे रहने देते हैं। आई विल लिंक प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट। तो फिर हम लोग क्या कर देते हैं, एनालिसिस ऑफ 1920, इसको हम लोग सेलेक्ट करके ओके कर देते हैं। तो बाय डिफॉल्ट उसकी पहली जो सेल है वो इंसर्ट हो गई यहाँ पर। उसके देखिए यहाँ पर A1 को हम लोग चलेंगे। अभी हमको ये सेल चाहिए, उसके लिए C3 कहाँ पर है, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली उसको C3 जो है वहां पर हमारा कर्सर आपको मिलेगा। देखिए यहाँ पर अभी डायरेक्टली A1 हो गई है। अभी हम लोग क्या करते हैं, उसको एक बार फिर से सेव करके लेते हैं और फिर से इसको क्लिक करके लेते हैं। बाय डिफॉल्ट वो क्या होता है, A1 जो है उसमें ही चला जाएगा। दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू यूज द हाइपरलिंक्स एज पर द नीड ऑफ आवर शीट्स। Okay, I hope you understand this point. This is how to use the hyperlinks here. Then how to use the hyperlinks for the different web pages. Then how to use the hyperlinks for the different documents in the same PC. Then web pages that is online and into the same sheets. So students, in today's lecture we have seen this point, that is how to set up the multiple worksheets here, then viewing sheet names and selecting the sheets. उसके बाद how to insert the sheets, then how to rename the sheets. Then उसके बाद we have seen how to delete the sheets, then how to perform the linking between sheets in the same workbook. उसके बाद हम लोगों ने देखा कि creating links to the other sheets also, and lastly how to use the hyperlinks into the sheets, that is from sheet to sheet. Then we can have the particular file to file. Then we have seen hyperlinks to the online web pages also. So that's all for today's lecture. So whatever the references I use are from the book Information Technology by Sumit. Okay student, that is all for today. We will meet in the next class. Till then, bye. So at the end of the session, let me tell you about the Mega Launch Mondays. It is one of the Unacademy subscriptions. So we are going to have the new batches for doubt clearing and NCERT exercises. And the batch will start from the 5th of July 2021 and its duration is up till the 30th of the November 2021. यहाँ पर हम लोग सबसे पहले लिखेंगे for CBSE class 10, that is target batch 2022. Yes, and it is going to cover the full NCERT syllabus with skill teachers. देखिए हमारी बैच जो है वो स्टार्ट होगी 5th of July 2021 से and it will end on 30th November 2021. So we are going to have subjects like SST, that is social sciences, आपका maths भी इसमें clear हो जाएगा, science, then English and Hindi also. So likewise we are having the target batch 2022 for class 9th also. So here also we are going to cover full NCERT syllabus. जिसे क्लास 10th में है वैसे ही आपका क्लास 9th में भी फुल NCERT सिलेबस जो है वो कवर है.
सो यहाँ पर भी आपके पास रहेंगे SST, देन मैथ्स, देन साइंस, इंग्लिश एंड हिंदी कोर्स. So you can subscribe for class 9th and get 10th, 11th and 12th subscription free. Likewise, you can subscribe for class 10th and you can get the subscription for the class 11th and 12th for free. So हमारी अनअकैडमी की जो बैचेस है, these will be new batches every Monday. Every Monday आपकी new batches जो है वो start होंगी for class 9th also and for class 10th also. This will be called as the class target 2022 batch, जहाँ पर हमारा full NCERT syllabus जो है वो cover हो जाएगा. So these are nothing but our unacademy batches for class 9th and class 10th. So I repeat again, that is if you are going to subscribe, आप लोग suppose 9th का subscription लोगे तो आपको क्या रहेगा, उसके साथ क्लास 10th, 11th एंड 12th का भी सब्सक्रिप्शन एब्सोल्युटली फ्री मिलेगा. सो 9th के बच्चों के लिए बहुत ही एडवांटेज रहेगा. विथ 9th आप लोग क्या कर सकोगे, 10th, 11th एंड 12th का सब्सक्रिप्शन ले पाओगे. वैसे ही अगर आप लोग क्लास 10th का सब्सक्रिप्शन लोगे उसका भी आपको एडवांटेज रहेगा. आपको उसके साथ क्या करेगा, क्लास 11th एंड 12th का जो सब्सक्रिप्शन है वो भी फ्री में मिल जाएगा. So just try to subscribe it and get the subscription free for class 10th and 11th and 12th. For 9th and for 10th, you can have the subscription of the 11th and 12th absolutely for free. So अभी मैं आपको अनअकैडमी प्लस और आइकॉनिक जो है उसके बारे में बताऊंगी. ओके, तो प्लस इज व्हाट योर बेसिक प्लान टू गेट स्टार्ट. एंड प्लस का जो एडवांस्ड है वो क्या है, आइकॉनिक. यस, यू कैन टेक योर CBSE प्रिपरेशन टू द नेक्स्ट लेवल विथ पर्सनल मेंटर. यस, करेक्ट. वी आर हैविंग द पर्सनल मेंटर्स फॉर द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन. देखिए, पहले हम लोग प्लस के बारे में बात करते हैं. प्लस में आपको मिलेंगे इंडिया बेस्ट एजुकेटर्स. आपको इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस भी मिलेंगी ऑन आवर अनअकैडमी प्लेटफॉर्म. उसके बाद आपके लिए हमेशा लाइव टेस्ट एंड क्विजेस लेंगी वीकली, मंथली. Then you are going to have the structure course and PDFs. Yes, the PDFs and course, that is notes, will be shared by the particular educator also. That will be the more benefit for you. Then next one is the iconic subscription. So जैसे कि मैंने अभी बताया, आइकॉनिक जो क्या क्या रहेगा, प्लस का एडवांस रहेगा. ठीक है, यहाँ पर भी क्या रहेगा, आपको इंडियाज बेस्ट एजुकेटर्स मिलेंगे. यहाँ पर भी आपको इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस मिलेंगी ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म एज वेल एज द यूट्यूब आल्सो. यस, प्लस में भी आपको यूट्यूब के लिए अनअकैडमी के लेक्चर्स मिलेंगे, वैसे ही आइकॉनिक मिलेंगे. ठीक है, उसके बाद आपको लाइव टेस्ट एंड क्विजेस रहेंगे यूजिंग मेंटी क्विजेस, और वी आर हैविंग द डाउट सॉल्विंग सेशंस आल्सो. एंड यस, ऑब्वियसली आइकॉनिक में भी आपको क्या मिलने वाला है, नोट्स एंड पर्टिकुलर PDFs आल्सो. दैट इज टोटल स्ट्रक्चर्ड कोर्स भी मिलेगा ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट हियर. ठीक है, बस आइकॉनिक्स में और एडिशनल क्या रहेगा, देखिए यहाँ पर आपको पर्सनल मेंटर रहेगा. यस, दैट इज इंडिविजुअल मेंटर विल बी देयर टू अटेंड योर ऑल डाउट्स एंड टू सॉल्व योर ऑल डाउट्स. दैट इज लाइव डाउट सॉल्यूशन भी आपके लिए रहेगा. यस, एंड यस, ऑब्वियसली पेरेंट का जो है आपके डायरेक्टली कॉन्टेक्ट रहेगा. दैट इज पेरेंट कनेक्शन विल बी देयर. And then next will be, you will have your own personal study planner. That will be the benefit of the iconic selection. And अगर आप लोग रेफरल कोड यूज करते हो तो you by using my referral code, that is TDI, you are going to have the 10% off on that. So देखिए, अभी यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे that is how to use the plus subscription और iconic subscription. देखिए, अभी समझो आप लोगों ने 9 का सब्सक्रिप्शन लिया तो उसके साथ 9, 10, 11 और 12 का सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाता है फॉर दी प्लस. ठीक है, वैसे ही आप लोगों ने 9, 10, 11 और 12 का आइकॉनिक का जो सब्सक्रिप्शन है वो ले लिया तो उसके साथ आपको मिल जाता है होल बैच. देखिए, अभी आप लोग अगर 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन करोगे तो आपको पड़ेगा 7,500, 7,500 में. अगर 6 मंथ का करोगे तो 10,000, 12 मंथ्स फॉर 15,000, देन 15 मंथ्स फॉर 18,000, और अगर 24 मंथ्स का लोगे तो वो रहेगा आपका 25,000 का. So these will be all the subscriptions for the plus. Okay, so likewise plus we are having iconic, that is it is advanced version of the plus subscription. देखिए, अभी iconic में आपको क्या रहेगा, if you are going to for the 3 months subscription आपको पे करने पड़ेंगे 12,000. अब if you are going for 6 months subscription आपके लिए रहेंगे 17,000.
Likewise, if you go for 12 months, you will have the 28,000. देखिए आप लोग जितना ज्यादा यूज करेंगे यानी कि जितना ज्यादा मंथ्स का आप लोग सब्सक्रिप्शन लगे उतना ही क्या रहेगा आपको डिस्काउंट भी अच्छे से मिलेगा. सो यहाँ पर आप लोग अगर 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन करोगे तो आपको रहेंगे 48,000. So likewise, you are going to have the subscription for the 9, 10th, 11th, 12th plus and 9, 10th, 11th, 12th icon. So उसके बाद अगर आप लोग क्लास 10 के लिए जाओगे तो क्लास 10 के लिए 11th एंड 12th का भी सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा. सो अगर हम लोग प्लस के बारे में देखें तो यहाँ पर क्या होता है, फॉर 3 मंथ्स यू हैव टू पे 7,500. देन उसके बाद फॉर 6 मंथ यू हैव टू पे 10K, दैट इज 10,000. फॉर 12 मंथ्स यू कैन पे फॉर द 15,000. सो वैसे ही आप लोगों को क्या क्या रहेगा, 15 मंथ्स का 18,000 के लिए, 18 मंथ्स का आपके लिए रहेगा 20,000, 24 मंथ्स का रहेगा 25,000 के लिए एंड 36 मंथ का 32,000 के लिए. सो अगर आप लोग 10th में हैं तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है कि आप लोग 11 का और 10 का सब्सक्रिप्शन भी उसके साथ ले सकते हैं. सो वैसे ही अगर आप लोग आइकॉनिक के लिए जाओगे, इफ यू गो फॉर द आइकॉनिक, देखिए यहाँ पर 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन जो है वो रहेगा 12,000 के लिए. देन 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन जो है वो रहेगा 17,000 के लिए. देन नेक्स्ट वन इज 12 मंथ्स फॉर 28,000. Then 15 months for 32,000, then 18 months for 35,000, then 24 months for 48,000, and lastly 36 months for 66,000. So I would suggest if you are going for the 9th, then you can have the benefit of both 9, 10th, 11th and 12th. अगर आप लोग 10th में जाओगे, 10 का सब्सक्रिप्शन आप लोग जोगे जो 10 के स्टूडेंट्स हैं, तो आपको 11th and 12th का सब्सक्रिप्शन भी उसके साथ मिल जाएगा. So and you can use my referral code also with the flat 10% off discount. So now Unacademy is going to have the scholarship worth of rupees 1 crore plus in month of the July. Yes, we are going to have the Unacademy compact. यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हैं, we are going to have weekly scholarship tests for CBSE class 9th and 10th students. So specifically for 9th and 10th के जो बच्चे हैं वो लोग ये स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए अप्लाई करेंगे. सो ये जो एग्जाम रहेगी दैट इज दिस कम्बैक्ट विल बी अवेलेबल और इट विल बी इन इंग्लिश एंड हिंदी, इन बोथ लैंग्वेज इट विल बी अवेलेबल on the date of the 4th July at 11 AM. So you can enroll now in the link which is given in the description box. So अभी अनअकैडमी कॉम्बैट स्कॉलरशिप टेस्ट में आप लोग क्या 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 जीत सकते हो. ओके, इट इज योर फॉर्मूला फॉर सक्सेस. फर्स्टली आपका स्टडी अच्छे से हो जाएगा. इफ यू आर गोइंग फॉर द स्कॉलरशिप टेस्ट देन इट विल बी हैव मोर एनकरेजमेंट फॉर यू टू स्टडी मोर एंड इट विल बी फन लर्निंग. सो यहाँ पर इसके साथ साथ आप लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन यूज स्कॉलरशिप्स वर्थ रुपीज 1 crore. यस, बिल्कुल सही. एंड द एग्जाम टाइम विल बी 45 मिनट्स. आपकी जो एग्जाम टाइम रहेगा वो रहेगा 45 मिनट्स का. इट विल बी हैविंग द 30 क्वेश्चंस. देखिए 30 क्वेश्चंस रहेंगे 45 मिनट्स के लिए. ओके, एंड यू कैन हैव दिस लाइव टेस्ट फ्री. ओके, इसके लिए कोई आपको सब्सक्रिप्शन नहीं करना है. यू कैन हैव दिस फ्री लाइव टेस्ट ऑन योर simple Android phone. If you are having a laptop, you can use the laptop also. And yes, obviously tests are going to have in Hindi and English as per your convenience. So just remember this test will be there for only for CBSE class 9 and just try to note down the date. That is what 4th July at 11. Okay, I hope you understood what is this Unacademy Combat Scholarship Test. So you can have the 10% off on Unacademy Plus and Iconic subscription if you are going to use my referral code, that is TD Live. Okay, so and yes, obviously you can download the Unacademy app that is totally for free and you can use its all features for free. And you please use my referral code, that is TD Love, if you are going to download the particular Unacademy education app. So students, that's all for today. We will meet in the next lecture. Unacademy. Let's crack it. Till then,